Dear investors of Grow, I'm Sunil Subramaniam here, MD of Sundaram Mutual Fund. I'm here over the next few minutes to give you a brief outlook on the stock markets as well as the debt capital markets in the country. Right? I'm sure all of you have exposure to equities and direct equities, to mutual funds, both in terms of the equity funds and the debt funds. And there have been a lot of developments over the last few months, which has naturally caused a lot of anxiety in the minds of investors. And I thought that this could be an opportunity to just give you an outlook, basically not too long term, but just in terms of this quarter, on what's happened in the last few weeks that are going to impact both these markets and what you should be ideally looking at in terms of your asset allocation in these two sectors. So to start off with an equity market outlook, right? Please remember that we are coming off a phase of a steep correction in March, which is a function of the COVID crisis. But just one thing which maybe many people don't understand is that the COVID is essentially a medical crisis, and the medical crisis has been addressed all over the world through means of the lockdown. What is the reason for this? Because there is no cure or vaccine in sight. And it is important to remember that while the medical crisis of the COVID has caused largely a supply side impact. So for a layman to explain supply side, because workers who've been affected because of the lockdown, people can't go to work, it is the supply of items in the country which has got affected all over the world. Right? It's not so much a demand problem. But the lockdown, which has been instituted by all governments and including the Indian government, has naturally had an impact not only on the supply, but also to some extent on demand, because people are not going to the movie theaters, malls, and the like. So largely a supply problem related with the demand problem. This, hence, is where the stock market has reacted badly to it. Because what happens, the stock market is largely a supplier-driven market, in the sense that a lot of the companies listed are supplying to it. So while demand takes a hit, and there is the overall feeling that the government should give more money in the hands of the people to boost demand. Please remember that any cash transfers that governments do last only for a few weeks or months, whereas anything that the government does to promote supply lasts for a longer period. So the market's reaction in this context was that when the lockdown happened, naturally in the month of March, the crisis plus the lockdown led to a steep correction, partly because retail investors in foreign countries who invest in emerging markets through ETFs, right? They pulled out a lot of money. So there was a correction. The second is the markets generally tell you a good sense of how the economy is going to do, because there are a lot of people who are researching companies, sectors, and they get a sense of the days to come. So market generally reacts ahead of its time, and that's why stock markets are generally called as the lead indicators of the economy. So the market correction in March actually presaged, right? तो अगर आप देखेंगे तो इस वक्त की जो मार्केट की एक्शन जो होती है वो आने वाले दिन की इकोनॉमी को आपको बताती है कि ये होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग उसको स्टडी करते हैं तो उनको एक जानकारी आ जाती है और वो स्टॉक्स में खरीदारी और बिक्री अहेड ऑफ टाइम कर देते हैं. तो ऐसी हालत में आप देखें तो मार्च का करेक्शन, ये लॉकडाउन वाली जो करेक्शन इकोनॉमी में थी उसको प्रेडिक्ट किया था, इसलिए बहुत स्टीप हुआ, क्योंकि इस साल प्रेडिक्शन है कि हमारी जीडीपी, जैसे वर्ल्ड की जीडीपी करीबन 3% नेगेटिव इस साल होने वाली है, और हमारे देश के उससे कई गुना ज्यादा 8 या 9% की बात भी कर रहे हैं. तो ये मार्केट की करेक्शन इन ए वे उसको प्रेडिक्ट करके करेक्शन हो गई. अप्रैल में आपने एक बाउंस बैक देखा ना, तो उसका कारण क्या था? फर्स्ट, ये करेक्शन एक ओवर रिएक्शन था इमीडिएटली, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास अभी भी पैसा आ रहा है, आप जैसे निवेशकों से 8,000 करोड़ एसआईपी के थ्रू आ रहा है, तो उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने खरीदारी की. तो एक तरफ वो अप्रैल में बाउंस बैक ये म्यूचुअल फंड की खरीदारी के कारण. दूसरी चीज है कि अप्रैल में बाउंस बैक था कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगा करके एक सोच थी लोगों के मन में, तो इसलिए उसको एंटिसिपेट करते हुए मार्केट बढ़ गई थी. पर जब मोदी जी ने पैकेज अनाउंस किया, राइट, तो आपने देखा कि ज्यादा डायरेक्ट उन्होंने कोई सेक्टर को ना हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ डिमांड, ना कोई स्पेसिफिक एक्शन जिससे इमीडिएट इकोनॉमिक रिकवरी सामने दिखे. तो ये कारण मार्केट थोड़ी ठंडी हो गई और थोड़ा रिलैक्स हो गया. मगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय में, यानी इस महीने मई मंथ में एफआईएस ने करीबन 12,000 करोड़ की खरीदारी करी है. उसके साथ जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में भी 2,000 करोड़ की खरीद. तो मई में क्या हुआ ऐसे
अप्रैल में मैंने कहा ना कि इनिशियलाइज था, फिर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। मई में क्या हुआ कि सबको समझ आई कि ये गवर्नमेंट जो एक्शंस ले रही है, यानी 20 लाख करोड़ की ये, और उसके साथ जो रिफॉर्म्स उन्होंने अनाउंस किया, ये हमारे देश के लॉन्ग टर्म भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। तो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पैसा ना, जैसे पेंशन फंड वाले पैसा या म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी हम निवेश करते हैं, तो एक 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम लेकर निवेश करते हैं। तो उस हालत में, राइट, हमारी सोच में ये जो मोदी जी ने जो कार्रवाई की है, उन्होंने बहुत कठिन रिफॉर्म्स, जैसे पब्लिक सेक्टर को एक नैरो स्पेस में रख के प्राइवेट सेक्टर को अंदर अलाउ करना, डिफेंस में उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, कोल माइनिंग को उन्होंने लिबरलाइज कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर मार्केट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। तो ऐसी चीजों क्या है ना कि देश के भविष्य में, फ्यूचर के लिए ये बहुत बढ़िया है। तो ये चीज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनके जानकारी में आ गई, तो वो खरीदारी शुरू कर दिया है इस महीने में। तो इस क्वार्टर के लिए अगर आप लोग देखें, जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म व्यू में एक स्टॉक को स्टडी किया है और समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में उसका फ्यूचर अच्छा होगा, मगर शॉर्ट टर्म में कोई करेक्शन है क्योंकि किसी ने बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए बेच दिया या किसी ने पैनिक सेलिंग से बेच दिया, उसको खरीदने की मौका हमें मिल रहा है, यानी सस्ते में हमें खरीदारी अभी कर पा रहे हैं। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि ये क्वार्टर अगर आप देखें, ऐसी खरीदारी चलती रहेगी, मगर जबरदस्त नहीं हो सकती है, क्योंकि कोविड के कारण और लॉकडाउन के कारण जो स्थिति है, वो इस साल तो हमारी जीडीपी को नेगेटिव रखने वाली है। थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है, तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद वाला क्वार्टर में शायद थोड़ा बाउंस बैक देखेंगे। तो इस क्वार्टर में मैं मार्केट को स्टेबल देख रहा हूँ, थोड़ी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे, थोड़ा 5% ऊपर नीचे हो सकता है, मगर ब्रॉडली एक स्टेबल मार्केट मैं सोच रहा हूँ। तो इसमें खास करके एक सेक्टर के बारे में थोड़ी मैं बात करूंगा, वो है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि हमारे जो लार्ज कैप इंडेक्स है, निफ्टी या सेंसेक्स, जो आप लोग ट्रैक करते हैं, क्योंकि एक्चुअली इंडिया में बीएसई 500 ही सही इंडेक्स है, यानी एनएसई 500, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट को कवर करती है, मगर सब लोग सेंसेक्स को देखते हैं और निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी के अंदर करीबन 30% बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा है। तो क्या होता है कि मार्केट की परफॉर्मेंस में बैंकिंग सेक्टर के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और जब एफआईएस ने बिक्री करी, क्योंकि एफआईएस का भी 1/3 एलोकेशन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में है, तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत स्टीप करेक्शन हुआ। कारण क्या था? क्योंकि सबको पता है कि लॉकडाउन के कारण जो सप्लाई वाली कंपनियां बंद हो चुकी है, तो रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर डिमांड में भी थोड़ा बहुत उसका असर आ गया, तो नौकरी चली गई या माइग्रेंट्स वापस चले गए, तो उसके कारण वो भी लोन नहीं रिपे करेंगे। तो मॉरेटोरियम ये सब आरबीआई ने अलाउ किया है, पर फिर भी एक डर है कि बैंकिंग सेक्टर की एनपीए ये दोनों क्वार्टर, इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर में लॉकडाउन के कारण बढ़ सकती है, और ये एक जेन्युइन फियर है। डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत से लोग, जैसे ऑर्डिनरी वर्कर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, ये अपने लोन भर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका धंधा तो बिल्कुल बंद हो गया। मगर ये करेक्शन तो बैंकिंग स्टॉक्स में हो चुकी है, करीबन 30% की करेक्शन आपने देखा है पिछले साल के लेवल्स में बैंकिंग इंडेक्स में। तो अब स्थिति आने वाले दिन के लिए म्यूचुअल फंड जैसे हम बैंकिंग स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, मगर क्या इसमें है कि दो चीज, बैंकिंग सेक्टर को हम 3 क्षेत्र में देखते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में छोटी प्राइवेट सेक्टर बैंक, और एक दूसरी होती है बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब ये साइज का इंपॉर्टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बता रहा हूँ ये ना, कि जब लोन्स डिफॉल्ट होते हैं तो एनपीए होता है, तो एडिशनल कैपिटल उसको कवर करने की जरूरत होती है। बड़े बड़े बैंक आसानी से मार्केट को टैप कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो या बाहर वाले देश में से पैसा उठा सकते हैं। तो इनके पास वो एक कैपिटल इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ है, उनके प्रमोटर्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो बड़े बड़े बैंक में हम सोचते हैं कि इस हालत में 3 महीने या 6 महीने के लिए एनपीए जरूर बढ़ेगी, मगर क्या है कि उसके कारण उनके टोटल परफॉर्मेंस में उतना असर नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास कैपिटल एडिक्वेसी कवर है। और एट द सेम टाइम वो नया बिजनेस, यानी लॉकडाउन के खत्म होते जैसे ही बिजनेस बढ़ेगी, राइट, लॉकडाउन तो परमानेंट नहीं होगा, अभी जून में एंड होगा, कोई कह रहे हैं या जुलाई में, समझ रही है 3 महीने की लॉकडाउन भी चलती है। उसके बाद जब रिकवरी होती है, तो ये छोटे बैंक वापस जाके लेंडिंग करने में उनके लिए दिक्कत होगी, बड़े बड़े बैंक आसानी से वहां पे स्टेप इन करेंगे। इनफैक्ट मैं सोचता हूँ कि कुछ मर्जर शर्जर भी होगी, क्योंकि छोटे बैंक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एनपीए लेवल को, और बड़े बैंक उनसे मर्जिंग भी कर देंगे। तो बड़े बैंक की जो आउटलुक है बहुत पॉजिटिव है।
सेम विद बड़े एनबीएफसी भी जो गुड क्वालिटी प्रमोटर्स के हैं और अच्छा कैपिटल एडिक्वेसी है। तो मेरे ख्याल में ब्लाइंडली एक बैंक इंडेक्स को देखकर खरीदना थोड़ा एक मुश्किल चीज है। बट आप म्यूचुअल फंड के अंदर बैंकिंग सेक्टर फंड्स देखेंगे तो उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि एलोकेशन जो बैंक इंडेक्स में होता है उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यानी उनके अंदर जो अच्छे बैंक है उनके लिए वेटेज बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको एक सेक्टर कॉल लेना है तो बैंकिंग सेक्टर कॉल ले सकते हैं। 3 कंडीशंस में बताऊंगा। पहली चीज है कि आप देख लीजिए पोर्टफोलियो में नाम कैसे हैं बैंक्स के, म्यूचुअल फंड के, हम जो ग्रो के इसमें भी आपको वो जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज आप देखें कि एक शॉर्ट टर्म अप्रोच मत लीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन कब खत्म होगी, ये कोविड का वैक्सीन क्योर कब होगा, ये कुछ डाउट है, मगर डेफिनेटली 1 साल के अंदर तो ये साफ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में आपको अगर 3 साल का आउटलुक रखें तो बैंकिंग इंडेक्स से आपको भरपूर फायदा मिल सकता है, मगर थ्रू म्यूचुअल फंड करिए। वैसे तो आपको वो भी डाउट है तो आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स ने भी बैंकिंग अपना एलोकेशन ज्यादा रखते हैं और वो भी बढ़ाएंगे सही तरह से। अगर आपको अगर सेक्टर कॉल लेना है तो मैं कहूंगा कि बैंकिंग रिलेटेड सेक्टर, और इसके अंदर आप ये भी सोचिए कि कई म्यूचुअल फंड के बैंकिंग सेक्टर फंड हो सकते हैं मगर फाइनेंशियल सर्विसेज फंड जिसका है, यानी वो बैंक से बाहर जाके इंश्योरेंस कंपनी, एएमसीज, राइट, ऐसे कंपनियों में भी निवेश करते हैं तो उसका स्टेबिलिटी और भी ज्यादा होगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर फंड्स म्यूचुअल फंड्स में देखकर आप सेलेक्टिवली निवेश कर सकते हैं, मगर ये एक रिस्की बेट है सेक्टर फंड, तो उसका एलोकेशन ऑलवेज एक 10 से 15% अपने टोटल पोर्टफोलियो में रखें। अब मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूँ तो डेट साइड में भी मैं बात करता हूँ। आपने देखा कि आरबीआई ने पहला कदम उठाया था, करीबन 8 लाख करोड़ की लिक्विडिटी उन्हें पंप इन की, और आखिरी कदम भी आरबीआई ने उठाया था जब उन्होंने रिसेंटली आके 40 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया। तो आरबीआई ने बहुत प्रोएक्टिव और बहुत सही समय पर और सही दिशा में और सही साइज में उन्होंने इंटरवेंशन किया है, और मॉरेटोरियम एक्सटेंशन लीजिए या लिक्विडिटी प्रोविजन लीजिए या एनपीए रिकग्निशन नॉर्म्स को बदलते हुए दीजिए, सब चीज में आरबीआई ने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया है। तो ये एक खास चीज है कि हमारे डेट कैपिटल मार्केट की, आपने सुना होगा रिसेंटली कि टेम्पलेटन की फंड में उन्हें बंद कर दिया क्योंकि दिक्कत होगी। तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि इस हालत में डेट सेक्टर में जो कंपनियां स्ट्रांग नहीं है, जो कंपनियां की सेक्टर्स अफेक्ट हो गई हैं, जैसे कमोडिटी सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, यहाँ पे आपको सीधा दिक्कत दिखता है। तो ऐसे पोर्टफोलियोज में कंपनीज है और उनकी रीपेमेंट्स भी अगले 3-6 महीने में हैं, तो नेचुरली थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपको सावधान रहना चाहिए, बिकॉज आरबीआई जितना भी कोशिश करे, अल्टीमेटली आरबीआई बैंकिंग सिस्टम और एनबीएफसी सिस्टम के थ्रू एक्ट कर सकती है। अगर म्यूचुअल फंड सिस्टम में हम आपका पैसा लेके कंपनियों को देते हैं, तो आरबीआई एक लिक्विडिटी लाइन प्रोवाइड किया है आरबीआई ने, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर लिक्विडिटी लाइन में से खाली हमें शॉर्ट टर्म रिडेम्पशन स्प्लिट कर सकते हैं, मगर एक्चुअल डिफॉल्ट हो गया तो उसका कोई उपाय नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको आरबीआई की जो एक्शंस है वो डेफिनेटली हेल्प करेंगी इकोनॉमी में, कि वीकर सेक्शंस को जैसे एमएसएमई को पैसा आएगी बैंकिंग सिस्टम से धीरे धीरे। तो ओवरऑल ये जो इकोनॉमिक चीज के कारण जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई है उसके हल हम देख रहे हैं आरबीआई के एक्शंस के थ्रू, और भी एक्शंस लेने के लिए आरबीआई रेडी एंड विलिंग है, तैयार। तो इसलिए उसके बारे में आपको फिक्र करने का नहीं। मगर अगर आप डेट में निवेश कर रहे हैं तो डेट में निवेश में आपको 3 चीज मन में रखनी चाहिए। कारण क्या है आप डेट में निवेश कर रहे हैं? एक होता है लिक्विडिटी रीजन, एक होता है वेल्थ क्रिएशन रीजन, राइट। तो लिक्विडिटी वाले रीजन में मेरे को आपको आपके इन्वेस्टमेंट से कोई दिक्कत नहीं दिखती, क्योंकि लिक्विड फंड्स, ओवरनाइट फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, इस कैटेगरी में उनकी एक्सपोजर सब 1 साल के अंदर होती है। और अगर आप उनके पोर्टफोलियो में देखें और उन्होंने ज्यादा एनबीएफसी या नहीं लिया तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। मगर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी जो पैसा आप फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में रख रहे हैं या प्राइवेट कंपनी के फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा रहे हैं, उसको आप म्यूचुअल फंड में लगा के और भी रेट आ रहे हैं। इस बार वो जो एडिशनल रेट है वो म्यूचुअल फंड से आपको क्यों मिलती है? एक, आपको लॉन्ग टर्म में टैक्सेशन का इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलता है, विच फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं मिलता है। दूसरी चीज है कि वो ज्यादा रिस्क भी लेती है। लेंडिंग में जो कंपनियों से, बैंक से पैसा नहीं उठा पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के पास पेपर के थ्रू ले रहे हैं, तो ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो उसका बेनिफिट आपको आता है। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है आज के दिन में बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन।
तो ऐसी क्रेडिट रिस्क वाली पोर्टफोलियो से थोड़ी देर के लिए आप दूर रहें तो वो उचित होगा। एट द सेम टाइम कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो कि इंटरेस्ट रेट को स्टडी करके प्ले करके उसका एडवांटेज उठा के आपको गेन्स देते हैं। जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक लॉन्ग टर्म पेपर ले लिया तो कैपिटल गेन्स बन सकता है। कुछ स्मार्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स है जो उसको अच्छी तरह से खेल के आपको पैसा दिलवा सकते हैं। अगर आपकी ऐसी सोच है तो मैं कहूंगा कि ऐसे फंड्स हैं जैसे बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स, यानी जो फंड्स खाली बैंकिंग सेक्टर या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निवेश करते हैं, यानी ये सेफर सेक्टर है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में बताया कि करेक्शन हुआ है, और बैंकिंग सेक्टर में डिफॉल्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आरबीआई उसके पीछे खड़ी रहेगी और बड़े बैंक कभी फेल नहीं होंगे एज फार एज रीपेमेंट ऑफ डेट इज कंसर्न। तो मेरे ख्याल में बैंकिंग एंड पीएसयू थोड़ा मीडियम टर्म आपको एक्सपोजर है तो बैंकिंग एंड पीएसयू एक अच्छी सेक्टर है। सिमिलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड ऐसे एक कैटेगरी है, वहां पे है कई म्यूचुअल फंड ट्रिपल ए पोर्टफोलियो चलाते हैं, तो ऐसे चीजों में निवेश करना सही होगा। मगर ज्यादातर मैं कहूंगा कि ये इंटरेस्ट रेट आउटलुक को प्ले करना, क्योंकि ऑलरेडी आज 10 साल का जीसेक रेट करीबन 6% से नीचे 5.6% के लेवल पे है, और इंडियन गवर्नमेंट की बोरोइंग रेट, क्योंकि आज आपने पढ़ा होगा पेपर में या टीवी में देखा होगा कि गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग मार्केट से बढ़ा रही है 12 लाख करोड़ तक। तो ऐसे गवर्नमेंट की बोरोइंग अगर बढ़ेगी और इंडिया की फिस्कल डिफिसिट भी बढ़ेगी तो नेचुरली इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड, गवर्नमेंट रेट्स का ट्रेंड थोड़ी राइजिंग ट्रेंड में होगी। तो ऐसी चीज में एक लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिट्स बनाना उतना आसान नहीं है, राइट। तो रेट ट्रांसमिशन हो रही है वो डायरेक्ट लेंडिंग में हो रही है, यानी कंपनियों को जो लोन मिलता है या आपको हाउसिंग लोन मिलता है उसमें रेट की कटौती देख सकते हैं, मगर एक म्यूचुअल फंड पेपर के लिए उतना एक करेक्शन इन द रेट्स हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो एक लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म अप्रोच में थोड़ा सावधान रहिए इन टर्म्स ऑफ द गेन्स, एक डिसेंट रिटर्न आप पा सकते हैं बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन बेनिफिट। तो ज्यादातर आपका एलोकेशन होना चाहिए लिक्विड और शॉर्ट टर्म कैटेगरी में। वहां पे जैसे मैंने कहा बिल्कुल सेफ होती है पोर्टफोलियोज बाय एंड लार्ज, और दूसरी चीज है कि आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नहीं होता है। अगर इंटरेस्ट रेट ये 5.6 से 6.5 बनता है तो वहां पे उनका असर नहीं होगा क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म है और वो रोल ओवर करते आते हैं। तो ये मैं सोचूंगा कि डेट के मार्केट के बारे में मेरी एक सोच है। उसके अलावा इन समरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि ओवरऑल एक एसेट एलोकेशन आप देखेंगे, राइट। तो मेरे ख्याल में आपको इस टाइम में दो चीजें होती है, आपकी रिस्क की कैपेसिटी आप जज कर लीजिए। अभी कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो सकता है, ये इतनी मार्केट में इतने गिरावट आ गई तो पुराना एग्रेसिव इन्वेस्टर भी आज मॉडरेट रिस्क में होगा। तो मेरे ख्याल में आप सिंपली क्लासिफाई करिए कि मेरी मॉडरेट रिस्क कैपेसिटी है या मेरी कंजर्वेटिव है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंजर्वेटिव और मॉडरेट में क्या फर्क होता है कि मॉडरेट को यह है कि ज्यादा रिस्क नहीं है तो मेरे को रिटर्न चाहिए, बट कंजर्वेटिव बोलता है कि देखो मेरे को बैंक डिपॉजिट थोड़ा बहुत मिल गया तो मेरे को तो ये दो कैटेगरी में मैं कहूंगा कि आज के दिन में आपको ध्यान देना चाहिए एज अ मॉडरेट इन्वेस्टर, आपको ध्यान देना चाहिए मल्टी कैप और लार्जर मिड कैप वाली कैटेगरी में। इसका खास चीज मैं क्यों बताता हूँ कि आज स्थिति है सेफ्टी की ओर, यानी जो सेक्टर्स हमें सेफ लगते हैं जैसे आईटी या फार्मा या कंजम्पशन, बेसिक कंजम्पशन, ये सेफ लगते हैं तो वहां पे रखना चाहिए और ज्यादातर लार्ज कैप में रखना चाहिए। मगर थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये कोविड का क्राइसिस चल जाएगा 3 महीने 6 महीने में, तो उस टाइम फ्रेम में क्या होता है कि सडनली मार्केट वापस रिस्क में बढ़ेगी तो एकदम रिटर्न्स बढ़ जाएगी, तो प्योरली आप सेफ सेक्टर में रह के आपका रिटर्न्स नहीं कैप्चर कर सकते हो। तो मल्टी कैप कैटेगरी में एडवांटेज क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आज ज्यादातर सेफ्टी लीजिए पोर्टफोलियो में और थोड़ी ही दिन में जैसे ही सामने एक लाइट दिखता है टनल के एंड में तो ऑटोमेटिकली वो रिस्क को बढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपके लेवल में आपने किया तो आपको टैक्सेशन का फिक्र होगा 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म, फिर लॉन्ग टर्म में टैक्सेशन आज बहुत सस्ता है तो आप स्विचिंग में सोचेंगे अरे मैं थोड़ा मैं वेट करूंगा तो मौका आपसे हाथ से छूट जाएगा। तो मैं कहूंगा कि इक्विटी एलोकेशन थोड़ा मॉडरेट एपेटाइट है तो आप मल्टी कैप या लार्ज एंड मिड कैप ऐसी कैटेगरी में निवेश कीजिए। और अगर आपको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है से 5 साल तो फिर एसआईपी के थ्रू मिड कैप और स्मॉल कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरी अगर आप कंजर्वेटिव माइंडसेट के हो पर फिर भी इक्विटी का लाभ उठाना एक कोशिश है आपके ओर से तो मैं कहूंगा कि आप हाइब्रिड की जो कैटेगरी है इसमें 2 कैटेगरी में खास करके पॉइंट करूंगा। एक होती है एग्रेसिव हाइब्रिड, नाम एग्रेसिव है क्योंकि 70% इक्विटी होता है मगर फिर भी 30% डेट में एक स्टेबिलिटी होती है इसकी परफॉर्मेंस
में, और दूसरी कैटेगरी होती है बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी। इस कैटेगरी में फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि चाहे डेट को 100% तक लेके जाए या इक्विटी को 100% तक लेके जाए। तो वहां पे भी आप देखेंगे तो फंड मैनेजर आज एक सेफ्टी प्ले कर रहे होंगे, यानी ज्यादा डेट लेंगे और ज्यादा इक्विटी के अंदर लार्ज कैप या सेफ्टी सेक्टर्स लेंगे, और जैसे ही वक्त बदलता है वो अपना पोर्टफोलियो बदल सकते हैं। तो थोड़ी कंजर्वेटिव माइंडसेट है, तो मैं कहूंगा कि आप ये कैटेगरी में रहिए, और इक्विटी सेविंग्स करके, और एक कैटेगरी थोड़ा फिक्स्ड एलोकेशन है, एक आर्बिट्राज में 1/3, डेट में 1/3 और इक्विटी में, वो भी एक सेफ तरह है, माने जस्ट एफडी काइंड ऑफ रिटर्न आपको मिल सकता है, एफडी से थोड़ा बेहतर बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन। तो डेट का एलोकेशन, जैसे मैंने कहा, आप लिक्विडिटी के लिए कभी भी आप डेट फंड्स में निवेश करते हैं, बिकॉज स्पेशली लिक्विड फंड्स में आप देखिए कि सेविंग्स बैंक के रेट कटते जा रहे हैं, आरबीआई की रिवर्स रेपो रेट कट रही है, तो ऑटोमेटिक सेविंग्स बैंक रेट भी कटेगी, तो ऑटोमेटिकली एफडी रेट्स भी 6 के नीचे आ गए, तो सेविंग्स रेट 3 के नीचे आ गए। तो डेफिनेटली आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड से 3 से बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न आप उम्मीद रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो भी पैसा आप लिक्विडिटी के लिए आपको जरूरत हो, उसको आप डेट में रख सकते हैं। ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट वेरी होता है, बट मैं कहूंगा कि किसी भी इन्वेस्टर को मिनिमम 20% डेट में रखना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर 30 to 40% भी डेट में रख सकता है, बट थोड़ा शॉर्ट टर्म और लो ड्यूरेशन ऐसे कैटेगरी या लिक्विड कैटेगरी के अंदर आप अपना एलोकेशन कीजिए। तो यही मेरी सलाह है आपके लिए, और दोबारा मैं बात करता हूँ आपको थोड़ी दिन के बाद। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और स्टे सेफ एंड स्टे एट होम एट दिस पीरियड। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।